क्या गिरा था इसके ऊपर? पानी। केशपुर का यूनिवर्सिटी का पानी है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा मालूम। हमसे भी ज्यादा तेज हो सकता है। हम जो सोच कर आए हैं शायद वो नहीं करेगा। अभी आप लोग को दिखेगा नहीं, शांत रहिएगा तो कुछ आवाज सुनाई पड़ेगी शायद। इफ इट वर्क्स वेल, ओके, आप शांत रहिएगा तो आपको पूरा आवाज सुनाई पड़ सकता है। एंड कीपिंग इट हियर, एंड कीपिंग इट हियर, ओके। हम लोग का रुमाल हमेशा साथ में रहता है, कहीं निकालने का जरूरत नहीं है। ओके, गुड, थैंक यू। उनको मालूम था कि मैं ये सब धंधा करने वाला हूँ। I will just touch the two hands to the bottle, will not press it. ईमानदारी से कह रहे हो, टेबल पे हाथ रख करके कसम खाता हूं। मैं इसको टच करूंगा दोनों हाथ से, क्या हुआ? हिला। आवाज सुनाई पड़ा क्या? पड़ा ना? आपको पड़ा ना? कैसा आवाज था? टक टक। शांत रहोगे तो आपको भी सुनाई पड़ेगा। आजा भाई, ये आया ना? तो मैंने प्रेस नहीं किया है, राइट? उसको कंफर्म करने के लिए मैंने प्रेस नहीं किया है। मैं अब ऐसे करूंगा, अब दोनों हाथ खोल करके पूरे प्यार से उसको पकड़ना दोनों साइड से। मैक्सिमम ऑफ योर हैंड्स विल बी इन कॉन्टैक्ट। हो गया ना? आपने प्रेस किया क्या? नो ना? हाँ। तो देखो क्या हुआ था, हम बता देते। मैंने ये ढक्कन को थोड़ा गीला करके I just put few drops here, or I just did it like this. I had some water in it. And I put the cap here, inverted. The flat part of the cap was put on this mouth of the bottle, and the screw part was in the sky, looking towards the sky. And then I only held it with my hands. So it jumps. Alright? ये अभी ऐसे नहीं गिर गया कि मेरा हाथ टेढ़ा हो गया। It jumped. उस समय थोड़ा जंप किया था, फिर मैं ज्यादा जंप कर गया तो नीचे ही गिर गया। So by holding it with the two palms, it jumps. Can you guess why? वेपर प्रेशर। अच्छा, हाँ, वेपर प्रेशर। ये पानी है तो पानी का वेपर है, वेपर के कारण से प्रेशर है। तो हवा था उसके कारण प्रेशर नहीं था क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका भी तो प्रेशर है। तो जो वेपर है इसमें, इस हवा में भी वेपर है ना? एयर कंटेन्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर कंटेन्स, क्या होता है एयर में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन हाउ मच? 78%, then 21 ऑक्सीजन, 21%। तो कितना हो गया? 99। बाकी 1% में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, other gases. Okay, everything else together is 1%. And that other thing also includes vapor, right? Water vapor, it's very much there, right? तो vapor तो पहले भी था, अभी भी था। हमने इसको नहीं टच किया था तब भी था। जब टेबल पर रखा है ना, मैंने टच नहीं किया, या नीचे से टच ऐसे पकड़ा हुआ है,
अभी भी वेपर है, सब कुछ है, अभी कुछ नहीं होता है, but when I put it my hands like this, then only it jumps. Sir, induced charges. Yes, sir. Sir, induced charges. Heat, right. What I'm doing is, my hands are somewhere around 37 degrees Celsius. The room temperature in the hall, what do you guess? 32. 25, 30, 27, 28, like that. Okay? So when I touch, my hands are warmer than the bottle, and therefore heat flows from Hotter to colder body. the bottle. And I needed a bad quality bottle for this. Bad quality bottle. बहुत अच्छा क्वालिटी का जो फ्रिज में रखते हैं ना, सुंदर सुंदर मोटा मोटा प्लास्टिक वाला. This experiment will not be done with that. So for us, वो पतला प्लास्टिक वाला फिर से मुड़ जाए ऐसा करने से, that will be the best. So that heat which is going from the hand to the plastic also reaches the air inside. Okay? I am not interested in heating the plastic. I am interested in heating the air inside. So that plastic should not obstruct heat flowing. So one way is to have a better conductivity material, but then the other way is to reduce the thickness. If you reduce the thickness, तो उतना पतला सा क्या कर लेगा मेरा? वो heat जाने ही देगा. Okay? And if you go for better conductivity materials, you will end up in metal bottles, metallic bottles, copper bottles, good for health. Water kept in copper bottle is said to be good for health. But then, they will not make a bottle of this kind of thickness. It will be much thicker than this. So total heat transmission will be obstructed there. So look for a poor quality plastic bottle and then do this experiment. You can use this cap. You can also use some kind of a coin, put the coin here and then do it. So heat goes in the air, the temperature increases of air, then what happens? This cap was here, and then the temperature of this air was increased because my holding the surface here, right? अब क्या हुआ next step? Air expands, but air cannot expand because it is closed from all sides. It is closed from all sides. So the volume cannot increase, cannot decrease. The temperature is increased. I have given heat to the air, but it is closed from top, and of course it is closed from side and bottom. So the volume remains the same, and temperature is increased. What will happen? Pressure will increase, right? Pressure will, if volume is fixed, then pressure is proportional to the temperature measured in Kelvin. PV equal to nRT. So if volume is fixed, then your pressure is directly proportional to the temperature, remaining the air remaining, amount of air remaining the same, of course. So pressure increases. If pressure increases, what will happen to the bottom? The pressure of the air inside has increased. Bottom को क्या होगा? वो air bottom को क्या करेगा? पहले जो कर रहा था आप क्या करेगा? ज़्यादा press करेगा. That's the meaning of pressure increasing, right? इसको क्या करेगा? Wall को क्या करेगा? Will push it compress harder. Pressure increase कर गया, मतलब ज़्यादा force लगा रखा है. इसको क्या करेगा? ढक्कन को क्या करेगा? That air of more pressure now push it more. सबको प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है जो अगल बगल सामने इधर उधर जो आ जाए सबको ठोक दो, है ना? जो अभी भी ठोक रहा है और जोर जोर से ठोक दो, प्रेशर बढ़ा दिया आपने. वो ठोकने से, ज्यादा ठोकने से इसका तो कुछ ना बिगड़ा, ये तो रिजिड हो गया है, तो अगल बगल सबसे जुड़ा हुआ है. बॉटम का तो कुछ नहीं बिगड़ा, थोड़ा दबा भी दोगे तो कोई बात नहीं है, दबा दो, अच्छा है, दर्द निकल जाए. दबाने से दर्द निकलता है ना. लोग बोलते हैं पैर बहुत दुख रहा है,
थोड़ा दबा दो उसको तो दर्द कम हो जाएगा। और जब गला दुखे तो क्या करना चाहिए? गला दबा देना चाहिए। उसको नहीं दबाना चाहिए। लेकिन ये जो ढक्कन है ना, इट इज जस्ट प्लेस्ड हियर। इसको अगर जो से इधर से शुरू कर दिया दबाना, then it can move up, right? जब ये मूव अप करेगा, what is the next step? This is analysis step by step, threadbare analysis. मैंने होल्ड किया, मेरा हाथ गर्म था, बॉटल का सरफेस ठंडा था, लेस टेम्परेचर पे था, हीट फ्लो हुआ, फ्लो होकर के एयर में पहुंचा, एयर को हीट मिला, एयर का टेम्परेचर बढ़ा, एयर का टेम्परेचर बढ़ा तो एयर का प्रेशर बढ़ा। सी द स्टोरी गोज इन ए वेरी लॉजिकल मैनर, वो कैरेक्टरिस्टिक है। आप जब भी पढ़ाई करोगे या किसी चीज को डिस्क्राइब करोगे तो गोज इन लॉजिकल मैनर, वो भेद टर्म से इस्तेमाल नहीं कर, उसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कहानी नहीं बनाना, बिल्कुल लॉजिकल उससे चलते। प्रेशर बढ़ने से फोर्स बढ़ा, तो कैप पे जो फोर्स लग रहा था पहले, which was not able to lift it, क्योंकि ऊपर से भी एयर का प्रेशर था, अंदर से भी एयर का प्रेशर था, प्लस इसका वेट था, सब मिला जुला के, प्लस यहाँ से जहाँ रखा हुआ है वहां से भी एक फोर्स ऊपर लग रहा है जिसके ऊपर रखा हुआ है, सब मिला के इट वाज इन इक्विलिब्रियम। Now one of the forces has increased upward, and therefore it goes up. Newton's second law. And when it goes up, अब क्या होगा? खुल गया। अब क्या होगा? Again it comes to equilibrium. ये ढक्कन खुल गया, अंदर का प्रेशर हवा का ज्यादा है, बाहर का कम है, तो ये क्या करेगी हवा? शक करेगा, अंदर से बाहर निकलेगी ना। अगर एक ज्यादा प्रेशर में हवा है, बाहर में कम है, और आपने ढक्कन खोल दिया, ज्यादा प्रेशर में से कम प्रेशर में जाएगा ना। साइकिल में हवा भरवाते हो तो क्या होता है वहां पे? तो पंप में ऐसा दबा करके करते हो तो यहाँ का प्रेशर बढ़ा देते हो, उधर का रहता है कब, वाल्व खुल जाता है तो रास्ता खुल जाता है, तो उसमें से पंप में से टायर में घुसता ना, ट्यूब में घुसता ना हवा, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाने का हवा का प्रकृति है। तो अंदर में ज्यादा प्रेशर है, बाहर में कम प्रेशर है, जब तक ढक्कन पड़ा है तब तक प्रेशर डिफरेंस मेंटेन्ड है, तो जाने का रास्ता नहीं, खुल गया तो जाएगा। अब जाने से क्या हो जाएगा? अंदर का प्रेशर वापस बराबर, जितना बाहर था उतना अंदर हो जाएगा, जितना पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उतना ही फिर से हो गया। अगर नहीं हुआ तब तक जाता रहेगा, हो गया तो जाना बंद है, कुछ हवा निकल भी गई है बाहर, राइट? तो इसलिए अंदर से तो प्रेशर जो बढ़ा था वापस पुराना हो गया, तो वापस गिरेगा इसके ऊपर, ये उठेगा, उठने के बाद हवा निकलेगी, हवा निकल गई, और तब ये वापस गिरेगा। जब वापस गिरेगा तो क्या करेगा? आवाज करेगा। उठते समय आवाज नहीं करता है, गिरते समय इसके ऊपर धक से मारते हैं ना, तो धक से आवाज करता है। वही आवाज आपने सुना, शायद आगे के लोग शायद सुन पाए होंगे, शांत रहेंगे तो पीछे तक भी सुनाई पड़ेगा। और आप पकड़े रहिए, आप पकड़े रहिए, फिर से गर्म, राइट? फिर से गर्म, द होल प्रोसेस विल रिपीट। तो इट नॉट ओनली वंस, उठेगा गिरेगा, फिर उठेगा फिर गिरेगा। So depending on what is the room temperature and all that, you can do it 5, 6 times, 7 times, or you can just do 2 times, 3 times, ऐसा टक 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 टक। आपके घर में ऐसा कुछ होता है क्या किचन में? कुकर, ऐसा कुछ होता है जो हमने किया, ऐसा कुछ घर में किचन में होता है क्या? प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में यही होता है, प्रेशर कुकर में ये होता है। आप अंदर का प्रेशर बढ़ाते हो, सब कुछ बंद है, ढक्कन ऊपर से रखा हुआ है, प्रेशर जब इतना बढ़ जाता है तो उसके वेट को लिफ्ट करने लगता है, तो वो ऊपर भागता है, तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, सीटी बजती है। यहाँ सीटी नहीं बजी, अंदर से हवा बाहर निकल गई थी ना, वही काम यहाँ भी हुआ, वहाँ स्टीम निकल जाती है अंदर से बाहर, और निकलते समय सीटी मारती है, क्योंकि बहुत पतले सा छेद होता है उसमें,
पतले से छेद में से बहुत स्पीड से निकलती है हवा, तो फिर वो सीटी मारती है। आप लोग सीटी मारते हो? पतला सा बनाते हो ना यहाँ पे, मारे जरा एक बात। क्या बात, क्या बात, हाँ गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो हो गया, हो गया, हो गया। तो आप अपने मुंह को ऐसा करके पतला सा छेद बनाते हो, वहाँ से हवा निकलने के लिए तेजी से उसमें से हवा निकालते हो, तो सीटी बजती है। स्लो मोशन प्रेशर कुकर में होता है, यहाँ पर वैसा नहीं हुआ है। For the same phenomena जो प्रेशर कुकर में होता है। ओके मैडम, 1:15 पे मुझको कह दीजिएगा कि 1 घंटा हो गया।